کہ فیصل آباد کے یوٹیلیٹی سٹورز پر دالوں کا کال پڑ گیا۔ 2 ماہ سے زائد عرصے سے یوٹیلیٹی سٹور پر دال چنا، سفید چنے، ثابت مونگ اور کالے چنے دستیاب نہیں۔ شہری اوپن مارکیٹ سے مہنگی دالیں خریدنے پر مجبور ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکام نوٹس لیں اور یوٹیلیٹی سٹور پر سستی اشیاء کی فراہمی کو یقینی بنائیں۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو، شہری اوپن مارکیٹ سے مہنگی دالیں خریدنے پر مجبور ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے حکام نوٹس لیں اور یوٹیلیٹی سٹور پر سستی اشیاء کی فراہمی یقینی بنائیں۔ اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں جانیں گے ہمارے نمائندے علی حیدر بھٹا سے۔ علی، بتائیے گا کیا صورتحال ہے؟ جی، شہر بھر میں یوٹیلیٹی سٹورز قائم کیے گئے تاکہ شہری یوٹیلیٹی سٹور سے اشیاء قرونوش جو ہیں وہ اوپن مارکیٹ کے مقابلے سستے داموں یہاں سے خرید سکیں، لیکن فیصل آباد کے یوٹیلیٹی سٹور سے 2 ماہ سے زائد عرصہ گزر چکا ہے۔ دالوں کی قلت کا سامنا ہے، جس کے بعد شہری مہنگے داموں اوپن مارکیٹ سے دالیں خریدنے پر مجبور ہیں۔ اب بتاتے جائیں کون کون سی دالیں جو ہیں وہ یوٹیلیٹی سٹور سے نہیں مل رہی۔ تو سب سے پہلے سفید چنے، اس کے علاوہ کالے چنے اور اس کے ساتھ ساتھ چنے کی دال، ثابت مونگ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے مسور کی تو مسور جو ہیں ان کی قلت کا بھی یوٹیلیٹی سٹور کے اوپر سامنا ہے۔ 2 ماہ سے زائد عرصہ گزر چکا ہے۔ یوٹیلیٹی سٹور سے 2 ماہ سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود دالیں جو ہیں وہ ابھی تک مہیا نہیں کی گئی ہیں، جبکہ صرف اور صرف 3 قسم کی دالیں جو ہیں وہ یوٹیلیٹی سٹور کے اوپر موجود ہیں، جن میں ایک تو مونگ کی دال ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مسور کی دال ہے اور اس کے علاوہ دال ماہ جو ہے وہ یہاں پر اویلیبل ہے۔ اس کے علاوہ باقی کی تمام قسم کی دالیں جو ہیں وہ فیصل آباد کے یوٹیلیٹی سٹور سے نہیں مل رہی، جس کے بعد شہری جو ہیں وہ خاصے پریشان ہیں۔ شہریوں کا حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ اور ان کا کہنا ہے کہ جلد از جلد یہ تمام دالیں جو ہیں وہ یوٹیلیٹی سٹور پر پہنچائی جائیں تاکہ شہری جو ہیں وہ یوٹیلیٹی سٹور سے سستے داموں دالیں خرید سکیں۔ جی علی، بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے۔ دوسری جانب جھنگ میں مہنگائی پردیسیوں کو بھوکا مارنے لگی۔ چکن، سبزیاں، گھی مہنگا ہونے سے ہوٹلز کا کھانا پہنچ میں نہ رہا۔ سالن کی قیمت میں فی پلیٹ اضافے پر پردیسیوں کی جیبیں خالی ہونے لگی۔ کئی ہوٹلز پر سالن کی فی پلیٹ کی قیمت 100 روپے سے بھی زیادہ ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، جھنگ میں مہنگائی پردیسیوں کو بھوکا مارنے لگی۔ چکن، سبزیاں، گھی سب کچھ مہنگا ہونے سے ہوٹلز پر کھانا بھی مہنگا ہو گیا۔ سالن کی قیمت میں اضافہ، مزدور پریشان ہے۔ کئی ہوٹلز پر سالن جو ہے اس کی پلیٹ کی قیمت 100 روپے سے بھی بڑھ گئی ہے۔ رمضان مرزا سے تفصیلات جانتے ہیں۔ رمضان، بتائیے گا۔ بالکل، مارکیٹ میں سبزیاں مہنگی، چکن جو ہے وہ ہاتھ لگانے میں نہیں آ رہا اور اس کے ساتھ ساتھ جو آٹا ہے اور گھی ہے اس کی قیمتوں میں بھی جو ہے وہ ہوشربا اضافہ ہوا ہے، لیکن روٹی جو ہے وہ 13 روپے کی حکومت اس کے اوپر بضد ہے۔ باقی چیزوں کے اوپر جو ہے حکومت کی جانب سے کوئی لاہے عمل جو ہے وہ سامنے نظر نہیں آ رہا۔ ہمارے ساتھ اس وقت ہوٹل مالک موجود ہیں، ان سے بات بھی کرتے ہیں۔ اب بھائی یہ بتائیے گا، روٹی تو 13 روپے کی ہے، کیا سالن عام آدمی کی پہنچ میں ہے؟ نہیں، روٹی کا ریلیف تو حکومت نے جو دی ہے وہ عوام تک پہنچ رہا ہے، لیکن سالن بہت مہنگا ہو گیا ہے۔ تقریباً 40 سے 50 روپے کلو گھی میں اضافہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ادرک مہنگی ہے، پیاز 150 روپے کلو ہے، ادرک 900 روپے کلو تقریباً پہنچ چکا ہے۔ چکن جو 600 روپے ریٹ ہے لیکن ہمیں 700 750 روپے میں مل رہا ہے، تو اس سے سالن مہنگا ہے۔ باقی چیزوں پہ بھی کنٹرول کرنا چاہیے حکومت کو کہ زیادہ سے زیادہ ریلیف ملے عوام کو اور زیادہ سے زیادہ عوام کا فائدہ ہو۔ بالکل، صرف روٹی کھانی ہے عوام نے، سالن نہیں خریدنا۔ یہ جی حکومت نے جو فیصلہ کیا ہے کہ 13 روپے کی روٹی، یہ تو بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، عوام بھی خوش ہے، لیکن ایک مزدور جو ہے وہ ایک 800 یا 1000 روپے کمانے والا بندہ ہوٹلنگ پہ اگر وہ آ جائے، وہ 200 اور 250 روپے میں اگر وہ روٹی کھا لیتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے وہ گھر کیا لے کے جائے گا، ہانڈی نہیں پک سکتی۔ ہمارا حکومت وقت سے مطالبہ ہے کہ اور چیزوں پہ بھی رد عمل دے، بالکل ریلیف دے، کیونکہ اس وقت پچھلے 2 ہفتوں کے دوران 15 کلو آٹے کا تھیلا جو ہے وہ 200 روپے تک مہنگا ہوا، فی کلو 14 سے 15 روپے کلو آٹا مہنگا ہوا۔ ادرک کی قیمت جو ہے وہ 550 روپے سے بڑھتی 900 روپے تک پہنچ چکی ہے۔ بینگن مہنگے ہیں، گوبھی کی قیمت جو ہے اس میں تیزی آ رہی ہے۔ چکن جو ہے وہ سرکاری نرخ جو ہے وہ لگ بھگ 600 روپے ہیں، لیکن مارکیٹ میں 700 سے 750 تک بک رہا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ حکومت کا سارا فوکس جو ہے چکن، گھی، دالیں سب مہنگا ہونے سے ہوٹلز پر سالن بھی مہنگا ہو گیا۔ ہوٹل سے کھانے والے مزدور جو ہے اس حوالے سے رمضان مرزا ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ رمضان، بہت شکریہ آپ کا۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ تجارتی خسارہ بڑھتی برآمدات کا اثر بھی زائل کرنے لگا۔ رواں سال کم پیداوار کے باعث کپاس کی درآمد بڑھی۔ مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں تجارتی خسارہ 4.24% بڑھا۔
अगस्त की निस्बत सितंबर में तजारती खसारे में 2% तक इजाफा रिकॉर्ड हुआ। सीनियर नायब सदर चैम्बर कैसर शम्स गुच्छा ने कहा कि खाम माल की खुद मुख्तारी होगी तभी बरामदात से फायदा होगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, माली साल की पहली छमाही में तजारती खसारा 4.24% बढ़ा। अगस्त की निस्बत सितंबर में तजारती खसारे में 2% तक इजाफा रिकॉर्ड हुआ। सीनियर नायब सदर चैम्बर कैसर शम्स गुच्छा ने कहा खाम माल की खुद मुख्तारी होगी तभी बरामदात से फायदा होगा। आपको बता रहे हैं तजारती खसारा बढ़ती बरामदात का असर भी जायल करने लगा। इस हवाले से मजीद का तफसीलात है बिलाल डोगर से जानते हैं। बिलाल, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, अगर बात करें मुल्की बरामदात तो बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन माहाना और सालाना दोनों बुनियादों के ऊपर तजारती खसारा भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि लम्हा फिक्री है कि मौशी तरक्की के अंदर ये रुकावट बन सकता है। मतलब सीनियर नायब सदर फैसलाबाद चैम्बर मौजूद है कैसर शम्स गुच्छा साहब, इनसे बात करते हैं। वो साहब, आप कैसे देखते हैं कि बरामदात बढ़ रही है लेकिन साथ तजारती खसारा बढ़ता जा रहा है, तो क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया डोगर साहब। देखिए, ये बहुत ही खुशाइन बात है कि हमारी जो है सालाना हमारी जो बरामदात हमारी बढ़ रही हैं। इसके साथ साथ हमारा जो तजारती खसारा है वो भी बढ़ रहा है। उसको कम करने के लिए हमें हुकूमत से गुजारिश करते हैं बार बार कि इसके लिए ऐसे स्टेप, ऐसे इकदाम लेने चाहिए। चैम्बर के फोरम से भी उनको बताया हमने कि बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त कि हमें जो है अपनी बरामदात, तो अल्लाह का शुक्र है हमारी एक्सपोर्ट बेहतर हो रही है। जैसा कि अभी हम बाहर से हमें ज़ाहिर आपको पता है कि हमारी जो है कॉटन रुई हमारी उसकी जो है प्रोडक्शन कम हुई है, वो बाहर से हमें उसके लिए इंपोर्ट करनी पड़ेगी उसके लिए रुई। तो उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें जो हैं अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो हमारा तजारती खसारा और बढ़ेगा। उसके लिए हुकूमत को चाहिए कि ऐसे स्टेप लें जिनमें तजारती हमारा खसारा कम हो और हमारी बरामदात बेहतर हो। उसके लिए हमारे जो मुल्क में हमारे अदारे हैं जो प्रोडक्शन इसके रिसर्च कर रहे हैं, इसके बीज के बारे में, सीड के बारे में, जैसे फैसलाबाद में अयूब रिसर्च है, बाकी शहरों में है, इनको चाहिए कि हमें रुई की पैदावार बेहतर करने के लिए, सीड इसकी प्रोडक्शन और क्वालिटी बेहतर करने के लिए अदारों को इफेक्टिव होना चाहिए और उनको बेहतर तरीके से उनको काम करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। कैसे शम्स गुच्छा साहब मौजूद है, वो कह रहे थे कि बरामदात बढ़ाने के लिए दरामदात जो हैं उनके ऊपर कंट्रोल करना होगा, तजारती खसारा कम होगा तो ही मुल्क की मुआशी तरक्की मुमकिन हो सकेगी। ऐसा नहीं है कि एक तरफ दरामदात बढ़ी है, तजारती खसारा बढ़ा है, दूसरी तरफ बरामदात बढ़ी है, ये मुल्क की तरक्की नहीं बल्कि मुआशी बदहाली है। जी, तजारती खसारा बड़ा है, ताजिर परेश लाल डोगर हमें अपडेट कर रहे थे। बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका। इलेक्ट्रॉनिक्स के कारोबार में शदीद मंदे पर फैसलाबाद के ताजरों ने सर पकड़ लिए। कहते हैं रवा साल इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबार बदतरीन बदहाली का शिकार रहा। 18% से 25% तक इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया पर टैक्सेस है। हुकूमत कारोबार बचाने के लिए टैक्स 5% करे। आपको बता रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के कारोबार में शदीद मंदे पर फैसलाबाद के ताजरों ने सर पकड़ लिए। कहते हैं रवा साल इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबार बदतरीन बदहाली का शिकार रहा। बात करेंगे फजील अहमद से। फजील, बताइएगा ताजरों का इस हवाले से मजीद क्या कहना है? बिल्कुल, इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबार इस साल में शदीद बदहाली का शिकार रहा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबार करने वाले ताजर जो हैं वो भी शदीद परेशान हैं और ताजरों की जानिब से अपील की जा रही है कि टैक्सेस का बोझ अगर कम किया जाए तो कारोबार जो है वो दोबारा से चल सकते हैं। ग्रुप लीडर फैसलाबाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन रजिस्टर्ड और साबिक सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स राना सिकंदर आजम खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं। जी राना साहब, बताइएगा क्या कहेंगे, किस हद तक डिस्टर्ब रहा कारोबार इलेक्ट्रॉनिक्स का इस साल के अंदर, वजूहात क्या? शुक्रिया फजील आपका। इसमें नो डाउट कोई है ही नहीं कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबार, पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स की मैं समझता हूँ कि जितना बिजनेस हो गया उसमें बदतरीन साल जो है वो ये रहा है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह एक तो बिजली महंगी, इतनी महंगी बिजली, और ये तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं वो बिजली पे चलती हैं। दूसरा टैक्सेस की भरमार है, 18% और से लेके 25% तक सेल टैक्स के ऊपर है। और ये वाहद पाकिस्तान की इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री ऐसी है कि जहां से आप 1 रुपया भी चोरी नहीं कर सकते सेल टैक्स की मद में। बकिया चीजों में आप 100% ही चोरी हो जाती है, लेकिन ये फैक्ट्री से निकलते ही एंड कंज्यूमर तक ये पेमेंट की जाती है। जी बिल्कुल, 18% की बजाय 5% सेल टैक्स किया जाए ताकि कारोबार जो है वो चल सकें और इसके साथ साथ रोजगार भी चल सके। फजील, बहुत शुक्रिया आपका।
चीनी की बरामद की इजाजत के बावजूद मार्केट में चीनी की कीमत कम होना शुरू हो गई। हुकूमत ने 5 लाख टन चीनी बरामद करने की इजाजत दे रखी है ताकि नई क्रशिंग सीजन से कबल सरप्लस चीनी बैरून मुल्क फरोख्त करके ज़र मुबादला कमाया जा सके। इस हवाले से तफसीलात क्या हैं, शराज भट्ट से जानते हैं। शराज, बताइएगा। चीनी के हवाले से खसूसी तौर पर बात करें तो चीनी का रेट जो है वो कम होता दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ पहली दफा मुल्क की तारीख में हुआ है कि चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाजत मिलने के साथ साथ चीनी की प्राइसेस जो है वो कम हो रही है। अमूमी तौर पर ऐसा ये होता है कि चीनी जब एक्सपोर्ट की जाती है, इजाजत मिलती है, तो साथ ही चीनी की प्राइस जो है वो बढ़ जाती है। दुकानदार हमारे साथ मौजूद, उनसे गुफ्तगू करते हैं कि चीनी की अपडेटेड प्राइस क्या है, कीमत क्या हो चुकी है और वो कम होती हुई कीमतों के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह पाक। अच्छा, चीनी की प्राइस सुना है कम हुई है, कितने 155 रुपए से कम हुई है भाई जी? 155 से 155 से कम होकर ये हुई है 145 भाई। 145 यानी तकरीबन 8-10 रुपए का फर्क पड़ा भाई रिटेल में। अच्छा, और एक्स मिल रेट जो है वो 121 रुपए आ गया। तो क्या कहेंगे, चीनी एक्सपोर्ट भी हो रही है, साथ चीनी की प्राइस कम भी हो रही है? दरअसल भाई इसमें ये है कि हमारे पास चीनी अभी यहाँ गोदामों में, मतलब कि शुगर मिलों के पास अजाफी बहुत पड़ी हुई है। अच्छा, अगर ये एक्सपोर्ट वगैरह भी करते हैं तो मतलब कि अभी 1 मंथ है, आगे से फिर शुरू हो जाना न्यू सीजन। हाँ, न्यू सीजन फिर शुरू हो जाना, तो ये फिर जो पुराना है वो तो मेरे अंदाज ज़ाया होगा। तो ये अभी, लेकिन गरीबों के लिए बहुत बेहतरी है कि 155 से अब 145 में आई है, तो गरीबों के लिए भी है अगर थोड़ी सी मसलन के। तो बाकी जो एक्सपोर्ट वगैरह होगी तो उसमें भी बेहतरी होगी। ठीक है। इस वक्त बताया जा रहा है कि जो चीनी इजाफी मौजूद है शुगर मिलों के पास, और उस इजाफी चीनी को एक्सपोर्ट कर देने में कोई मज़ायक़ा नहीं है। और ख़ास तौर पर बात करें, अगर चीनी एक्सपोर्ट होने के साथ साथ चीनी की प्राइस भी कम हो रही है, जो इजाफी चीनी पड़ी है उसको एक्सपोर्ट अगर कर दिया जाए तो ना सिर्फ ज़र मुबादला इकट्ठा होगा बल्कि इसके साथ साथ गरीब और मुतवस्सित तबके को फ़ायदा भी पहुँचेगा। ठीक है शराज, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद में टीबी, दमा, सांस और मिर्गी के मरीजों को मसाइल। मेडिसिन मार्केट से अहम और ज़रूरी अद्वियात गायब हो गए। टेग्राल, वेंटोलिन, इनहेलर, मायरल पी फोर्ट और मैग्रल नायाब हो गई हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, फैसलाबाद में टीबी, दमा, सांस और मिर्गी के मरीजों को मुश्किलात का सामना है। अज़ादार हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। अज़ादार, बताइएगा मजीद कौन कौन सी अद्वियात मार्केट से नहीं मिल रही? आज बिल्कुल चंद अहम अमराज की अद्वियात इस वक्त मार्केट में मुयसर नहीं है, जिससे मरीजों को मुश्किलात का सामना है। इसमें मिर्गी के अद्वियात शामिल हैं, दमा के अद्वियात शामिल हैं, सांस के मरीजों के अद्वियात शामिल हैं, सर दर्द की अद्वियात शामिल है। समेत कौन कौन सी अद्वियात शार्ट है। हमारे साथ सदर केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन राना फरूक आजम नारू मौजूद, उनसे बात करते हैं। राना साहब, बताएं कौन कौन सी अद्वियात शार्ट है? जी अस्सलाम वालेकुम जी, शुक्रिया सर आपके तावन का। पहले जो हर चीज़, बहुत सारी चीज़ें शार्ट थी ना, वो अब नहीं है। अब बहुत सारी कवर हो गई हैं। अब चांद एक चीज़ शार्ट है जिसमें मेन है मायरन पी, टीबी के मरीजों के लिए ये ज़्यादा शार्ट जो है, इसके मरीज धक्के खाते फिर रहे हैं, उनको नहीं मिली। उसके बाद मैगर गोली है आदत सर दर्द के लिए, वेंटोलिन इनहेलर वगैरह वो भी एक दफ़ा सप्लाई है, उसके बाद फिर शार्ट है। टगराल गोली भी कुछ शार्ट ही है। इसमें चंद एक आइटम है जो शार्ट है, बाकी ज़्यादा शार्टेज कवर हो गई है। उम्मीद है ये भी अल्लाह करे शार्टेज कवर हो जाएगी और मरीजों को। इसकी वजह क्या क्या बताते हैं इसके जो मुतलका डिस्ट्रीब्यूटर है या कंपनियाँ? वो रिटर्निंग गोली जैसे बहुत कम है, वो आती ही कम है, कंपनी बनाती ही कम है। इसी तरह मैगलर गोली भी हमेशा सारा साल शार्ट ही रहती है, कभी आगे कभी नहीं है, कभी नहीं आगे। इनहेलर जो है वो बहुत अहम होते हैं। जी वो उसकी पहले एक सप्लाई आई थी डिस्ट्रीब्यूशन के पास, वो सप्लाई हुआ था, उसके बाद दोबारा फिर शार्टेज आ गई है। अब कहते हैं अभी जल्दी माल आ जाएगा, दोबारा फिर शार्टेज खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह इसकी। मुतलका कंपनी के साथ राब्ते में, और मुतलका कंपनी का ये कहना है कि जल्द जो कमी है इसे दूर कर दिया जाएगा। पहला बैच जो कि फराम किया गया था वो मार्केट में फरोख हो चुका है और इस वजह से जो है अब मार्केट में आए मरीजों को जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी ठीक है अज़ादार, बहुत शुक्रिया आपका। अलॉट की गई 3 केनाल अराजी की मनसूखी का मामला लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद और दीगर अफसरान पेश अदालत को मुतमईन न कर सके। अदालत ने मेंबर कॉलोनीज नबील जावेद और दीगर अफसरान को 18 अक्टूबर को तलब कर लिया। कमिश्नर सलबत सईद भी आइंदा समाअत पर तलब। शहरी अबू बकर की दरखास्त पर समाअत हुई। दरखास्त गुजार की जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा। आपको अपडेट कर रहे हैं, अलॉट की गई 3 केनाल अराजी की मनसूखी का मामला लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत।
डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद और दीगर अफसर पेश हुए, अदालत को मुतमईन ना कर सके। इसी हवाले से मजीद क्या तफसीलात है, मलक अशरफ हमारे साथ लाइन पे मौजूद है, बताइएगा आज की समाअत के हवाले से। जी, लाहौर हाई कोर्ट में आज एक अलॉटमेंट के मुताबिक केस की समाअत थी, जिसमें फैसलाबाद के अफसरान खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत हुई, जिसमें डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद समेत दीगर अफसरान अदालत में पेश हुए हैं, लेकिन डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद नदीम नासिर अदालत को मुतमईन नहीं कर सके, जिस पर अदालत ने 18 अक्टूबर को मेंबर कॉलोनी नबील जवेद को, कमिश्नर फैसलाबाद को और उन समेत दीगर को जाती सिविल में पेश होने का हुक्म दिया है। जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने शहरी अबू बकर की दरखास्त पर समाअत की तो डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद समेत दीगर अफसरान पेश हुए और डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद जो थे अदालत में उन्होंने पेश होकर अदालत को बताया कि इस ऑर्डर के हवाले से जो डायरेक्शन थी उनको जो मामला है उस हवाले से लेटर जो है वो मेंबर कॉलोनी को भिजवा दिया गया है, जिस पे जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने एडिशनल एडवोकेट जनरल से मुकालमा करते हुए कहा कि आइंदा समाअत में दीगर जो फरीकान हैं उनको भी बुलवा ले, जिस पर एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा कि फरीक नंबर 1 को बुलवा लेते हैं, जबकि दरखास्त गुजार वकील का ये कहना था कि अदालत ने हुक्म दिया था कि दरखास्त गुजार को जमीन का कब्जा दिया जाए, लेकिन अभी तक वो कब्जा नहीं दिया गया। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद का ये कहना था कि वो जो वहाँ पे काम जो तरक्याती काम हो रहा था उसको रोक लिया गया है। ताहम अदालत में डिप्टी कमिश्नर कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके। अदालत ने केस की समाअत 18 अक्टूबर के लिए मुलतवी की है और कमिश्नर फैसलाबाद समेत दीगर अफसरान को 18 अक्टूबर को जाती सिविल में पेश होने का हुक्म दिया है। दरखास्त गुजार ने फैसलाबाद और दीगर अफसरान अदालत को मुतमईन ना कर सके। अदालत ने मेंबर कॉलोनीज नबील जावेद और दीगर अफसरान को 18 अक्टूबर को दोबारा तलब कर लिया है। मलिक अशरफ हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कल टोबा टेक सिंह आमद के पेश नज़र इंतजामात जारी। स्पोर्ट्स स्टेडियम में पंडाल की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल, सिक्योरिटी प्लान भी तश्कील दे दिया गया। 1000 से ज़ायद अहलकार ड्यूटी फराइज सर अंजाम देंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कल टोबा टेक सिंह आमद के पेश नज़र इंतजामात जारी। स्पोर्ट्स स्टेडियम में पंडाल की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। बात करेंगे मुबशर हसन नकवी से। मुबशर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की कल टोबा टेक सिंह मुतवक्की आमद है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ की आमद भी मुतवक्की है और इस हवाले से टोबा टेक सिंह इंतजामिया की जानिब से इंतजामात किए जा रहे हैं और ये इंतजामात तकरीबन आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। 2 रोज़ से देखा जा रहा है कि शहर की सफाइयाँ भी जारी हैं, तजारत का खात्मा भी किया जा रहा है और जो दीगर इंतजामात हैं वो भी किए जा रहे हैं। तहम एक पंडाल जो है वो स्पोर्ट्स स्टेडियम में जो है वो लगाया जा रहा है, सजाया जा रहा है और यहाँ पर इस वक्त जो कुर्सियाँ हैं आपको दिखा सकेंगे कि यहाँ पर कुर्सियाँ जो हैं वो लगाई जा रही हैं और जो इंतजामिया है, इंतजामिया का कहना है कि करीबन 1150 के करीब किसानों को मदऊ किया गया है और तकरीबन 1500 के करीब अफराद जो हैं वो इस पंडाल में मौजूद होंगे। 1150 किसान और दीगर जो मेहमान जो हैं वो इस पंडाल में शरीक होंगे और वज़ीर पंजाब मरियम नवाज़ इसी पंडाल में किसानों से खिताब करेंगी और यहीं पे किसान कार्ड का जो इफ्तिताह है वो करेंगी। आपको दिखा सकेंगे कि मेरे पीछे ये स्टेज बनाई गई है जहाँ पर मरियम नवाज़ जो है आकर खिताब भी करेंगी और दीगर मेहमान भी इसी स्टेज पर उनके साथ बैठे होंगे। तहम टोबा टेक सिंह इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी के इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। तकरीबन 1000 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो हैं वो कल मरियम नवाज़ की आमद के मौके पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे और ज़राए ये कहते हैं कि करीबी इजलास से भी पुलिस की नफरी को बुलाया जाएगा। तहम गवर्नमेंट कॉलेज में हेलीपैड बनाया जाएगा और इसके साथ साथ दीगर जो मेहमान हैं उनको इन्विटेशन कार्ड जो है वो इंतजामिया की जानिब से भिजवा दिए गए हैं और तहम इस हवाले से देखा भी गया कि मुख्तलिफ जो वज़रा हैं उनकी जानिब से दौरे भी किए गए हैं, उनको ब्रीफिंग भी दी गई है और जो किसान हैं उन किसानों को भी मदऊ कर दिया गया है जो इस पंडाल में शरीक होंगे और इस तकरीब में वज़ीर पंजाब जो इनसे खिताब भी करेंगी और यहीं पर वो किसान कार्ड का इफ्तिताह करेंगी। ठीक है मुबशर, बहुत शुक्रिया आपका। ओला मोहम्मदाबाद की सब्जी मंडी बारशिप स्पुर्द करने की तैयारियां, बैरूनी सड़क मंडी से 1 फुट तक ऊंची रख दी गई। आड़ती पॉलिसी साजों पर फट पड़े, कहते हैं बारिश आने से सारा पानी मंडी में आ जाएगा। मजीद आड़तियों का क्या कहना है, मोहम्मद अली नारो से जानते हैं। अली, बताइएगा।
फैसलाबाद गुलाम मोहम्मदाबाद सब्जी मंडी के बिरोने रोड जो कि गोल मस्जिद से लेकर सीए स्टॉप तक है, उसकी तमीर का मामला है। ऊंचा रोड तमीर किया जा रहा है। मंडी के जो सतह जमीन है उससे जो ताजर है मंडी के वो सरापा एहतजाज है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के खिलाफ। इनसे बात भी कर लेते हैं। जनाब बताइएगा क्या मुआजरा है, रोड इस कदर ऊंचा क्यों तमीर किया जा रहा है, इसके बाद क्या मुश्किलात पेश आएंगी मेन मंडी के ताजरों को? पहले तो ये रोड 2 साल पहले ये बजरी वगैरह पर आगे चले गए हैं, इसको छोड़ के चले गए हैं। अब 2 साल बाद रोड बनाने के लिए आए हैं। ये रोड जो गुलाम मोहम्मदाबाद का सड़क का लेवल है, मंडी का लेवल है, परले थाने रोड का लेवल है, गोल मस्जिद से पिछला लेवल है, वो इस सड़क से 1 फुट कम से कम नीवा है। इस सड़क को जो दूसरी सड़कें हैं उसके मुताबिक बराबर बनाना चाहिए ताकि पानी जो भी है वो गुजर सके। आप बताइएगा अगर रोड ऊंचा तमीर हो जाता है, पहले ही मंडी में बारिशी पानी जमा रहता है अक्सर, तो फिर और सूरत अबतर हो जाएगी? जी, इससे तो और सूरत अबतर हो जाएगी। सारा पानी मंडी में जाएगा। इसका निकासी का पानी सारा मंडी में है, बाहर कहीं नहीं जाएगा पानी। मंडी में ही जाएगा। ताजरों के सामान का खराब होने का खदशा है। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को कि इस रोड के हवाले से? रोड के हवाले से जो गोल मस्जिद वाली सड़क है ना वो भी नीवी है, और पाली सड़क लाइन डबल है वो भी नीवा है। जो इस वक्त आज रोड बनाया गया ना ये फोटो में मंडी में ऊंचा है। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि जो रोड है वो मंडी की सतह के हिसाब से जैसे दूसरे रोड्स हैं, सड़कें हैं, तमीर होनी चाहिए ताकि किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना। मंडी के ताजर परेशान है। अलीनारो हमें अपडेट, बहुत शुक्रिया आपका। गोशवारे जमा करवाने का आखिरी रोज। डिवीजन में अब तक 3,30,000 से ज्यादा अफराद इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवा चुके। आपको बता रहे हैं टैक्स गोशवारे जमा करवाने का आखिरी रोज। इस हवाले से तफसीलात उमर अजमत से जानते हैं। उमर बताइएगा। जी, माली साल 2024 के इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने का आज आखिरी रोज है। फैसलाबाद डिवीजन के हवाले से बात की जाए तो 3,30,000 से ज्यादा टैक्स गुजारों ने अब तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवा दी है, जो कि गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में 100% रिकॉर्ड इजाफा है। गुज़श्ता माली साल इसी रोज पे 1,58,000 अफराद ने अपने इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाए थे, लेकिन दवा माली साल के दौरान 3,30,000 से ज्यादा अफराद अब तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवा चुके हैं। फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर के हवाले से अगर बात की जाए तो आज चूंकि रिटर्न जमा करवाने का आखिरी रोज है, तो शहरियों की एक बड़ी तादाद इस वक्त भी FBR दफातर के अंदर मौजूद है। अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने के लिए FBR की जानिब से जो मुलाजमत पेशा अफराद हैं उनको सहूलत फराहम करने के लिए खुसूसी काउंटर्स कायम किए गए हैं, जहां पर बगैर किसी फीस के शहरियों को ये सहूलत फराहम की जा रही है कि वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फिल करके जमा करवा सकते हैं। जबकि कारोबारी अफराद जो हैं वो खुद या अपने कंसल्टेंट्स के जरिए अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवा रहे हैं। 3,30,000 फैसलाबाद की तारीख में पहली बार इतनी बड़ी तादाद में इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाई गई है। FBR हुकाम के मुताबिक उम्मीद की जा रही है कि आज शाम तक और इसके बाद जो एक्सटेंशन वाली एप्लीकेशन है उनको मिलाकर रिटर्न फाइल करने वालों की जो मजमूई तौर पर तादाद है वो 4 लाख से तजावुज कर जाएगी। टैक्स गोशवारे जमा करवाने का आखिरी रोज। उमर अजमत हमें फैसलाबाद की सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे थे। अब बात करेंगे चिन्योट की सूरत हाल के हवाले से। माहाना टैक्स हदफ पूरा, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, विद होल्डिंग टैक्स की मद में तकरीबन 38 करोड़ टैक्स जमा कर लिया गया है। मजीद तफसीलात ब्यूरो चीफ वकार घुम्मन से जानते हैं। वकार बताइएगा। हुकूमत की जानिब से टैक्स गोशवारे जमा करवाने के लिए वक्त में इजाफा किया गया था। 14 अक्टूबर उसकी आज आखिरी दिन है, और अब तक अगर हम सिर्फ चिन्योट की बात करें तो चिन्योट जो टैक्स ऑफिस है इसने अपने जो माहाना टारगेट्स हैं वो अचीव कर लिए हैं। तकरीबन 38 करोड़ रुपए का जो टैक्स है वो इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और विद होल्डिंग टैक्स की मद में अब तक जमा किया जा चुका है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो आज टैक्स गोशवारे जमा करवाने का आखिरी दिन है। टैक्स गोशवारे ऑनलाइन भी जमा करवाए जा सकते हैं और मैनुअली दफातर में आके भी जमा करवाए जा सकते हैं, जिसके सिलसिले में यहाँ पे हेल्प डेस्क कायम है। ताहम इस्लामाबाद में SCO कॉन्फ्रेंस की वजह से हफ्ते से लेके अगले 3 दिन तक जो टैक्स जितने भी FBR के दफातर हैं वो SCO कॉन्फ्रेंस की वजह से बंद हैं, और हमारे ज़राए का ये कहना है कि मुमकिन तौर पर एक बार फिर टैक्स गोशवारे जमा करवाने की जो तारीख है इसमें इजाफा हो सकता है। ताहम अभी तक इस किस्म का कोई फैसला सामने नहीं आया, लेकिन इस्लामाबाद में तमाम दफातर बंद होने की वजह से ये इजाफा जो वक्त में इजाफा है, तारीख में इजाफा
मुमकिन है। इस हवाले से आज शाम तक जो ऐलान किया जाएगा। दूसरी जानब अगर हम बात करें तो इस वक्त चिन्योट में बड़ी तादाद में अभी तक टैक्स गोशवारे जमा करवाने वाले अफराद वाकई हैं, जिनके लिए जो मुतलका दफातर हैं वो खुले हुए हैं। उनका ये कहना है कि यहाँ पे आके टैक्स जमा करवाए जा सकते हैं। ठीक है वकार, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।